طرح لوگوں کی پرسنل لائف کو ہٹ کر رہا ہے اور جس طرح لوگوں کی خوشیوں کا قاتل بنا ہوا ہے، اس پہ کام کرنے والے خود کو سو کالڈ انفلوئنسرز کہنے والے اور سو کالڈ چند گندے یوٹیوب، وہاں پر رہائش پر سب سے پہلے جو ہے وہ میڈیا کا اتنا زیادہ شور و غل ہونا اور پھر مولانا صاحب کو کے بارے میں جو ہے وہ غلط باتیں کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ گھٹیا لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ ایک دن آپ یوں ہم کو مل جائیں گے۔ اور دوسری بات، مولانا صاحب کے بیٹے کا بیان جو ہے میں سن رہی تھی، بھائی آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میری بڑی عزت والی زندگی ہے، میں بڑی رسپیکٹڈ بندی ہوں، میں نے عزت پہ میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، میرے لیے وہ میرے والد صاحب کی جگہ ہیں، وہ آپ کے والد صاحب ہیں، وہ میرے بھی والد صاحب ہیں۔ مولانا صاحب نے ایک نکاح پڑھایا جو کہ اس وقت بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور اس پہ مولانا صاحب کی ذات کے اوپر کافی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے۔ بے شک تنقید ہونی چاہیے اگر کوئی غلط چیز آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں دو میں گزارشات کرنا چاہوں گا اس معاملے میں۔ جو مولانا نے نکاح پڑھایا ایک ڈاکٹر صاحبہ کا، تو اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر یا اس بات کی وجہ سے مولانا پر تنقید کرنی چاہیے، ضرور کریں۔ جن کا نکاح ہوا، جن خاتون کا، ان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بے شک ان کی طرف سے حد سے ایک تجاوز ہوا ہے جو کہ نامناسب تھا، نامناسب ہے۔ اس میری بہن کو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس نے مولانا سے نکاح پڑھوانا ہے تو پھر جب آپ نیک یا کسی بزرگ کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، اس سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، آپ اپنا رشتہ جو شادی کا، ازدواج کا رشتہ ہے، اس میں بندھنا چاہتے ہیں ایک نیک بندے کے ہاتھوں، تو اس کے لیے پھر اس بندے کی رعایت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جو اپنا میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، یہ ساری ویڈیوز کے بعد میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو مجھے پتہ چلا ایک ظاہری بات ہے آج کل کی ایک جو بدقسمتی سے ایک سوشل میڈیا پر جس کو ہم انفلوئنسر کہتے ہیں، بدقسمتی سے وہ ان کا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور انہوں نے اس چیز کی بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھا کہ ان کا اس وقت جو نکاح ہے وہ کون پڑھا رہا ہے۔ اور دیکھیں وہ ہماری رہائش گاہ تھی، ایک تو مولانا صاحب بذات خود بزرگ ایک نیک انسان ہے، جب آپ اس کے پاس جا رہے ہیں ایسے شخص کے پاس، تو اس کا ادب احترام ملحوظ رکھنا، اس کا لحاظ کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے آپ پہ۔ پھر جب آپ خاص طور پہ اس کی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس میں بھی وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرنا جو اس شخصیت کے بالکل اینٹی ہیں، یعنی اپوزٹ ہے، تو یہ بھی بڑا ہی نامناسب ہوا ان کی طرف سے۔ جو ویڈیوز بنائی گئیں اس میں وہ گانے گا رہی ہیں، ایک دن آپ یوں ہم کو مل جائیں گے، پھول ہی پھول راہوں میں کھل جائیں گے، میں نے سوچا نہ تھا، میں نے سوچا نہ تھا۔ ہاں اگر آپ نے خوشی منانی ہے تو وہ تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس کے گھر میں یہ کام آپ کر رہے ہیں، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ شخصیت کون ہے۔ ان چیزوں کو ان محترمہ کو بہت زیادہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے بالکل نہیں کیا، تو بڑا افسوس کی بات ہے۔ اور اب جو نیگیٹو دیکھیں مولانا کے اوپر جو سارا اس کا آ رہا ہے فیڈ بیک، وہ بھی بیچارے اب ان کی عمر، صحت، جو لوگ ان کو چیزیں واٹس ایپ اور ویڈیوز بھیج رہے ہیں، تحریریں بھیج رہے ہیں اور برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو اس کا پریشر بھی ان بیچاروں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں جو بھی کرٹیسزم کر رہے ہیں ضرور کریں، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں کرنے والا کون ہے۔ ان کی عزت میری عزت پر وار ہے، اور اگر یہ معاشرہ کسی بہن بیٹی کی عزت پہ وار کر سکتا ہے تو یہ عالم دین کو بھی نہیں چھوڑتا۔ لوگوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لہو لہان کر دیا تھا۔ یہاں پر تو جو ہے وہ حضرت مریم پر بھی تہمتیں لگیں، یہاں پر تو جو ہے وہ حضرت یوسف کو انہوں نے اپنے رشتوں نے جو ہے وہ ان کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کو بلند کیا۔ یہ عوام، یہ لوگ اسی نسل سے ہیں جو کہ کردار کشی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی یہ کردار کشی دیکھ رہے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ نے جو ہے وہ اس چیز کا احترام نہیں رکھا۔ ڈاکٹر نبیہہ جتنا احترام جو ہے مولانا طارق جمیل کا کرتی ہے، میں اپنے دل سے ان کو اپنا والد مانتی ہوں،
और मेरे लिए वो काबिल एहतराम शख्सियत है। आपके घर का तकद्दुस और एहतराम कोई पामाल नहीं हुआ। आपके पास जो ये घटिया यूट्यूबर पहुंचे हैं और जिन्होंने आपको ये वीडियो बनाने पे मजबूर किया है, मुझे सारी रिपोर्टें हैं और मुझे सब पता है। तो भाई आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप इस तरह जो है वो एलिगेशन ना लगाएं कि मैंने वहां बैठकर गाने गाए हैं। मैंने अपने शौहर के लिए 2 लफ्ज गुनगुनाए हैं, मैंने कोई बैठ के वहां पे गाने नहीं गाए। और एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। वो भी मीडिया के सवाल पर कि जी आप अपने शौहर को जो है वो कुछ गुनगुना के डेडिकेट कर दें, ठीक है। तो मैंने कोई तकद्दुस खराब नहीं किया, कोई मैंने जो है वो गलत काम नहीं किया। मैंने निकाह किया है और मौलाना तारिक जमील साहब जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद बन के मेरे सर पे हाथ रखा है। ये क्रिटिसिज्म बंद कर दें, मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। मैं आपको लास्ट वार्न कर रही हूँ क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। 2 साल हो गए हैं ये बदतमीजी बर्दाश्त करते हुए। ये जिस मीडिया नेटवर्क का काम है, मुझे तुम्हारे सबके जो है वो चट्टे कट्टे पता है। जिस दिन मैंने बैठ के खोलने शुरू किए ना, तो तुम लोग और मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से या मेरे हवाले से तुम जो उनके पास जा जाके मेरे खिलाफ वीडियोस बनवा रहे हो ना, मेरे पास वो फुटेजेस भी आ चुकी हैं, मेरे पास वो वीडियो भी आ चुकी हैं। तो बाज आ जाएं बस। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं, मुझ तक सारी बातें आ गई हैं। ये जी हमारी मुखालिफ पार्टी है, मैं आवाम को बताना चाहती हूँ। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन आज से 5 साल पहले बनाई थी हारिस के साथ मिलके, यंग मीडिया एसोसिएशन। उसके चंद गंदे कीड़े, गंदे चंद यूट्यूबर्स जिनकी औकात 2 टके की भी नहीं है, जिन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें बनाई, अपने आप को सो कॉल्ड सहाफ़ी कहने वाले ये घटिया लोग, जिनके घर में बहन बेटियां नहीं है, जिनको इज्जत का पास नहीं है, ये पीछे छुप के वार कर रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं। इतना तुम में दम है ना, तो आओ डॉक्टर नबिया साहब के सामने जो है वो आकर मुंह पर कह के देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे किसी की तजलील करते हैं और कैसे किसी के निकाह की जो है वो वीडियो या ऑडियो या ये चीजें जो है वो लीक करते हैं, ठीक है ना। आप आए, मैं पब्लिक फिगर हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे पे तबसरे करेंगे। मुझे आप लोगों के तबसरों की जरूरत नहीं है और ना मैं आप लोगों के तबसरों पर जो है वो चलती हूँ, ठीक है ना। मैंने नेकी का काम किया है, मैंने एक जो है वो तारीख रकम की है। मैंने बहन बेटियों को ये समझाया है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करती हैं तो निकाह के बंधन में बंधें, और इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है। मैंने कोई गैर शरई काम नहीं किया है। तो इसको प्रोपेगेंडे को बंद कर दो, क्योंकि अब जो है ना वो मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जितने पेजेस पर भी जो है वो मेरे या मेरे शौहर के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ये अब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। हमारी खुशी में रंग में भंग डालने वाले ये जो गंदे यूट्यूबर्स हैं, तुम सब के चेहरे मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो याद है, तुम सब का मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पता है। और तुम ये जो गंदी साजिशें कर रहे हो, और ये 2 टके की जो टिकटॉकर बगैरत किस्म की, जिसको गैरत नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके घर वाले उसकी इज्जत नहीं करते, ये हम पे बात करेगी। तुमने जो है वो हिना सलमान से 35,000 रुपए का फ्रॉड किया हुआ है मोटी, और तुमने जो है वो ये क्या उसको कहते हैं, ये सदोजई जो है जो यहाँ पे फूड व्लॉगर है, उसके नाम पे 80,000 का फ्रॉड किया हुआ है। मेरे पास वीडियो आ गई है। मेरे साथ ज्यादा अगर मेरे बारे में अब बात की ना, तो मैं तेरी वीडियो चलाऊंगी अब, ठीक है ना। और तेरे घर में क्या क्या होता रहा है और तेरी बहन बेटियां क्या क्या करती रही है, मैं ये भी सबको बताऊंगी। अगर मेरी इज्जत पे वार कर रही है ना, तो मैं भी बैठ के तेरे चट्टे कट्टे जो है वो अब खोलूंगी। और दूसरी बात, वो गंदी सी जाली यूट्यूबर जो हर वक्त जाली 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 डॉक्टर की जो है वो बगैरती करती है, तू मेरे घर में रहती थी, या तू जो है वो मेरी बहन है कि जिसको जो है वो ये पता है कि मेरी डिग्री जो है वो जाली है या असली है? तूने मुझे पढ़ाया है या मेरे पे पैसा लगाया है? तू मेरी अम्मी है जो मुझे बताएगी? खबरदार, बकवास बंद, बस, इनफ इज इनफ। अब नहीं, मौला अली का फरमान है कि अगर कोई तुम्हारी इज्जत पे वार करे और अगर कोई तुम्हारे रिस्क पे वार करे तो उसको जवाब दो। तूने हम पे झूठे इल्जामात लगाए, तू लोगों पे झूठे पर्चे करवाती है, गंदी जाली काले रंग की औरत। तू जो है वो जितने तेरा मुंह काला है उतना ही तेरा दिल भी काला है, और उतनी तेरी जुबान भी जो है वो गंदी है। तुझे शर्मो हया नहीं है अपनी बेटियों को पेश करने वाली गंदी यूट्यूबर, कि तू जो है वो अपनी बेटियों को पेश करके जहां जहां लोगों के खिलाफ जो है वो पर्चे करवाती है। मुझे सब पता है तेरा, तेरी ऐसी की तैसी।
तू आ जरा सामने, तेरे में इतना दम है ना, तू आ मेरे सामने जो है वो मुकाबला कर आके, मैं तुझे बताऊं पीठ पीछे जो है वो शेरनी बनी फिरती है, तेरी 2 टके की औकात नहीं है। तूने जिन 2 टके के लोगों को अपना भाई बना के यूट्यूबरों को मेरे पीछे लगाया, तूने उनसे गंदे मैसेज मुझे करवाए, उनके गंदे मैसेज भी मेरे पास सेफ हैं, ठीक है ना। अब बात ऐसे है तो फिर ऐसे ही होगी। अब मैं भी तुझे बताऊंगी, तुमने क्या समझ रखा है कि डॉक्टर रबिया कुछ बोलती नहीं है, ये माहिर नफ्सियात है, ये गुस्सा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? मेरी इज्जत पे बात आई, मेरे किरदार पे बात आई तो गाड़ के रख दूंगी मैं तुम लोगों को, समझ आई? अब नहीं, बस बहुत हो गया तमाशा। अब मेरे बारे में किसी ने भी कोई बात की या मेरे निकाह के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई बात हुई तो जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे, मैं नहीं होंगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खस्सी या कोई इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल किए गए, वो बहुत बहादुर आदमी है, वो खोकर फैमिली से है और मैं पठान फैमिली से हूँ। पठान अपनी इज्जत पे वार बर्दाश्त नहीं करता। पठान जो है ना, वो कौन सी कौम है, शायद तुम्हें अभी पठानों से पाला नहीं पड़ा और तुम्हें खोकरों से भी पाला नहीं पड़ा। खोकर भी जो है ना वो किसी को खुद से नहीं छेड़ते, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ते नहीं है। तो ये बात जो है ना वो जहन में रखना। जिस इदारे में महकमे में जाना है ना मुझे लेके, घसीटो आओ। तुमने मुझ पर जितना गंद उछाला है, तुम्हारे घर में बहन बेटियां होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन बेटियों के जाके मोबाइल चेक करो, क्या गंद जो है वो उछाल रही हैं। औरत होके औरत पर गंद उछालने वाली गंदी औरतों, जलील औरतें हो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें जो है वो सुना जाए। और जो लोग तुम पे भरोसा करते हैं वो भी तुम्हारे जैसे गंदे लोग हैं, समझ आई? खबरदार जो अब मेरे बारे में जो है वो कोई बात की या मेरी तस्वीर जो है वो इस्तेमाल की या मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें इदारों में घसीटूंगी। अब मैं घसीटूंगी तुम्हें और मैं देखती हूँ कि कौन जो है वो ये मेरे बारे में जो है वो बात करता है। मैं 250 किलो का जो है वो यहाँ पर पहनूं या मैं 200 किलो का जो पहनूं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनूं, मेरी शादी थी, मेरा मसला था। मैं तुम्हारी पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ जिस पर तुम लोग जो है वो तबसरे करने के लिए जो बैठे हुए हो। एनफ इज एनफ, बस इससे आगे नहीं, और ना मैं बर्दाश्त करूंगी।